और डाइवो के हवाले से पुरवकार तकरीब जारी है। एक बार फिर आपको लिए चले, डाइवो एक्सप्रेस का एक और एजाज, पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज हो चुका है। In terms of launching more electric buses. So this electric bus has a 350 kilowatt hour battery produced by CATL. So it's been put together by Golden Dragons, a leading bus company in China. And in keeping with tradition, I think Chinese are a leading factor in the electric mobility market. And I think it's only apropos that we're introducing a Chinese bus as the first intercity electric bus in Pakistan. So this bus is going to ply the Lahore to Sialkot route. And the reason for that is that currently the way battery technology is, we can only really use these buses for short routes. So our first route that we're applying this bus on is Lahore-Sialkot. And inshallah, as we continue to add more electric buses, we will be introducing these buses on the Lahore-Faisalabad, Lahore-Sahiwal, and Lahore-Sargodha routes in Punjab, and inshallah the Karachi-Hyderabad route. So I think that is where we intend to be at least in the next year or so, where all of our routes that are under 200 kilometers will be using electric buses. Now it's all well and good to talk about the contribution, mashallah, that we are making to the improvement of the environment, which of course is a big motivator. We carry the burden of our responsibility very heavily. We transport sector in general is a contributor to the carbon emissions and a contributor to some of the climate issues that the country is facing. So we are very wary of that fact, and we wish to make our contribution to make sure that we reduce the carbon emissions. So this bus for every kilometer will replace 1.3 kilograms of carbon. So every year, half a ton of carbon that would have been emitted by a diesel bus plying the same route will not do so, and that I think is a contribution that we're very proud of. Having said that, our motivation for introducing electric buses isn't 100% altruistic, although it is a big part of our motivation. But there have been certain measures taken by the government of Pakistan, which we would like to commend the government on. And in keeping with that, it has made, from a financial perspective, it's made the introduction of electric buses possible. First of all, the custom duty and sales tax policy of the government of Pakistan has been such that if you were to compare the landed cost of an electric intercity bus with the landed cost of a diesel bus, the difference is actually very minor. In fact, I think over time we expect that the landed cost of electric bus may actually go below that of a diesel bus. So even in terms of upfront capital expenditure, we're not burdened that heavily. But more importantly, I think the new policy that's been introduced by the Power Division, where electric vehicles have a separate charging tariff, and that tariff is at a reduced level, is a big advantage. And I think many of our competitors, as they see us introduce this bus, will realize that it is actually by far cheaper to run an electric bus than it is to run a diesel bus on a per kilometer basis. And I think whereas it was always true that the life cycle cost of an electric bus was going to be lower than that of a diesel bus, I think now it's very clear that that break-even point at which the increased capex of an electric bus gets covered will arrive much sooner with this new Power Division tariff policy. So all of those factors and the guidance Minister Saab of the Punjab government as well as of the federal government has led us to this day, where mashallah say we are now running these buses, and the plan
as has been conveyed to me by the Board of Directors, is that inshallah we intend over the next 5 to 7 years to have 100% electric buses operate on all of our routes all over the country. Obviously, this is based on the assumption that the battery technology, which has improved quite substantially over the last many years, will continue to do so, and we're quite confident that it will happen. So inshallah, our next get-together, inshallah, will be the day when 100% of our fleet is electric, and I hope that you will join us on that occasion as well. Thank you. जदीद दौर के जदीद तकाज़े। पाकिस्तान की पहली डाइवो की ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस है। पाकिस्तान के इंटरसिटी रूट पर डाइवो की माहौल दोस्त पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार चिश्ती साहब, चेयरमैन, फैसल साहब, CEO, all the respected guests sitting over here, members of the press, अस्सलाम वालेकुम। आज बाकी एक हिस्टोरिक दिन है। डेवू जो कि मार्केट लीडर है इंटरसिटी बस ट्रैवल का, ये पायनियर थे जिन्होंने एक सेफ और एक कंफर्टेबल सफ़र लोगों को दिया, जो कि जिसकी पाकिस्तान लोगों को पहले आदत ही नहीं थी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रॉपर इंडस्ट्री डेवलप हो गई, बट दे आर स्टिल द मार्केट लीडर्स। और आज इन्होंने मार्केट लीडर होने का सबूत भी दिया और अपना हक भी अदा किया। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर गोइंग ग्रीन। पंजाब गवर्नमेंट का एक विजन है, CM साहिबा का एक विजन है। वी हैव अ T30 विजन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जहाँ पे हमने 30 by 30 का एक टारगेट अपने ऊपर लिया हुआ है, जिसके अंदर वी वांट ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड to actually be 30% electric by the time we hit 2030. It looks like a long shot, but जिस तरह आज एक बहुत मेजर इनिशिएटिव ले लिया डेवू वालों ने, तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट वाकई इतना लॉन्ग शॉट नहीं है, विल बी एबल टू डू इट। और इनका टारगेट बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट साथ लाइन है। दे टॉकिंग अबाउट converting their whole fleet to electric in the next 5 to 7 years, and that's exactly what we plan to do as well. पंजाब गवर्नमेंट भी ये प्लान कर रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की अपने फ्लीट में जितनी व्हीकल्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करके वी विल गो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक, एंड देयर विल बी नो मोर डीजल और पेट्रोल इंजन्स ऑन द रोड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। अभी हम बात करते हैं इस बस की, डेवो एक्सप्रेस की। आई मस्ट से कि इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप दैट यू हैव टेकन। इट्स स्टिल अ न्यू टेक्नोलॉजी, नो वन इज़ यूजिंग इट इन पाकिस्तान राइट नाउ, एंड यू आर द फर्स्ट वंस टू ट्राई इट आउट। I wish you the best of luck. इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि ये आपने जो तजर्बा किया ये बड़ा सक्सेसफुल होगा, इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी बेहतर होगी। जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसको हम बेहतर से बेहतर करें। सो वी डू एक्सपेक्ट समथिंग नाइस टू कम आउट ऑफ दिस बजट एज वेल एंड द बजट्स टू कम। सो वी आर वेरी होपफुल दैट येस, in the next years, in the next 4-5 years, the policy will be set कि आपको actually डीजल बस से सस्ती आपको इलेक्ट्रिक बस पड़ेगी, और आपको सक्सेसफुल मॉडल चलाता देख के बाकी सारे भी आपको फॉलो करेंगे, एंड वी विल एक्चुअली बी मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। सो ये जो बारिश का पहला कतरा जो हम बचपन में पढ़ते होते थे, यही सबसे मुश्किल होता है। द फर्स्ट वंस हू टेक द स्टेप आर द ब्रेवेस्ट वंस, but they actually gain the most as well. So I am wishing you the best of luck on this excellent venture. मैं सिर्फ एंड में कहना चाहूँगा कि अभी चंद दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, हमने एक पाकिस्तान में नया फिनोमेना देखा। एक इंडिया ने हमारे ऊपर रात के टाइम अटैक कर दिया। उस अटैक का पाकिस्तान ने बहुत सक्सेसफुली जवाब दिया। पूरी दुनिया ने इस बात को एडमिट किया। पाकिस्तान में सैडली पिछले चंद सालों से एक मायूसी की लहर छाई हुई है। बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, एवरीबडी, हर बंदा अपने अपने लेवल पे एक मायूसी अपने ज़हन पर सवार करके बैठा हुआ था, और वो मायूसी ये थी कि पता नहीं पाकिस्तान का बनना क्या है, पता नहीं हम
बचेंगे नहीं बचेंगे, पाकिस्तान का सर्वाइवल है कि नहीं है। जो हमें रोज़, माज़रत के साथ मेरा मीडिया बैठा हुआ है, यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, जो मीडिया ने रोज़ 12 साल शोज़ पे बिठा के लोगों से बातें मुँह सुन के निकलवाई, वो तो ये कहती है कि पाकिस्तान को तो बचना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन यकीन जाने कि एवरीवेयर आई गो, एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, एनी पोलिटिकल गैदरिंग, एनी गैदरिंग आई गो टू, मैं पिछले 8 साल से ये शोर कर रहा हूँ और ये मैं बात कह रहा हूँ कि आप हौसला रखें, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे 1989, आई वॉज 9 years old, तो मैंने पहली बार अखबार में खबर पढ़ी कि पाकिस्तान दिवालिया हो चला। उस दिन से लेके आज तक मैंने अखबार में यही पढ़ा है कि पाकिस्तान ने बचना नहीं है। हुआ तो हमें कुछ भी नहीं। वी emerged victorious not from a war, we came out with new alliances। हम बाहर निकले तो हम एक नए हौसले के साथ निकले, एक जज्बे के साथ निकले। कौम के अंदर एक उम्मीद जागी है। जो यहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं, आप सारे एम्बेसडर्स हैं। जब आप लोगों में बैठते हैं, उनको जाके ये बात समझाएं, आम लोगों को ये बात समझाएं कि ये मुल्क कहीं नहीं जाने वाला। जो पॉलिटिकल यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, जो पॉलिटिकल हमारी लड़ाई है, वो हमारी और दूसरी जमात की हम लड़ते रहेंगे, हम अगले 100 साल लड़ेंगे। बट हमारी लड़ाई को, हमारी पॉलिटिकल वॉर को आप लोग पाकिस्तान के साथ तो अटैच ना करें। पाकिस्तान के बेसिक्स पहले भी अच्छे थे। वी हैव एक्चुअली प्रूवन कि जो एक इस इलाके का थानेदार बनता था, जो कि दुनिया में कहता फिरता था, जो कि आज से 20 दिन पहले दुनिया में जहाँ जाता था वहाँ कहता था कि पाकिस्तान तो आइसोलेटेड है, पाकिस्तान से तो खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है। तो आज एक नए अज़म के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जब यहाँ से जाएं, सबको बताएं द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ गोइंग प्लेसेस, वी आर नॉट स्टॉपिंग नाउ। हमारा फोकस है, हमारा अज़म है, हमारा इरादा है कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। लेकिन ये काम हम अकेला नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी बैठी हुई है, आप लोग इस बात को रियलाइज़ करें कि ये इतना फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट इस टाइम पे दुनिया में, विद द अमेरिकन टैरिफ्स कमिंग इन, विद द वर्ल्ड शिफ्टिंग, मतलब आपका यूरोप के अलाइंसेस कहीं पे बन रहे हैं, चाइना कहीं और प्ले करना शुरू हो गया। वी आर इन द मिडल, वी आर एक्चुअली वेयर द चेंज इज़ गोना स्टार्ट फ्रॉम। तो आप लोग कहता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि by the time 2029 arrives and the next 5 years, the 10 years that we see coming down the road, Pakistan would be a different country, और आप लोगों की वजह से वो सारा कुछ होना है। So bear with us, stay with us, help us out to make Pakistan great. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा शरियात जोशी साहब से कि सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज टू प्रेजेंट द मोमेंटो टू मिस्टर बिलाल अकबर खान साहब। एक बार बहुत सारी तालियाँ प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। एक बार बहुत सारी तालियां प्लीज़। इसी के साथ हम अपने इवेंट को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हॉल के बाहर हमारी बस मौजूद है, इलेक्ट्रिक बस, उसकी रिबन कटिंग सेरेमनी होगी, वहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग है एंड फिर रिफ्रेशमेंट्स एंड हाई टी के लिए आप लोग प्लीज़ वापस आइएगा। थैंक यू सो मच। डाइवो एक्सप्रेस का एक और एहसास, जदीद दौर के जदीद तकाजे, पाकिस्तान की पहली डाइवो की ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत, हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को बेहतर किया जाए, बेहतर सफरी सहूलियात के ज़रिए। हमारी पूरी कौम मुत्तहद है, इस मुल्क की खिदमत हम करेंगे। पाकिस्तान की इंटरसिटी रूट पर डाइवो की माहौल दोस्त पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब, जो कि शानदार और पुरवकार तकरीब जारी है। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन डाइवो ग्रुप एशिया पाक शहरियार चिश्ती और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड CEO डाइवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी की शिरकत। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।